sakama tongpio tini poirawo probu no man dikenai memala skam pero jonom rubi tinai chin probu jisu no jonom baso dening ko amen lao chungso to prathana kelaina menang pro pa habai sorgo bagraha tini nong rubi ti moi probu tini lai thingnai barkla ma barrao horkla ma hor sakla ma sawo tini nom kui kuya ya yakung chorha ya khe probu tini nom tui the tui dul mobile tini shonibar poiro wo probu tini nom man dikhe nai tini somoy bai ranjak nung ripin be nung naska pero khachang mo kau sa sapyo arangni probu tini nung ba abrugle boni somoy non na ya khe puthimo ya bera thai to nai ro atong akhe ba abru probu tini hospital ro wo klaiye tini bingtai klumsa maya ye hampanda maya keng tunarau matung sikna roni sakarawo probu tini nung hampanda gidi ake ba probu tini budi mas somai rangzau rono probu tini nui khau ye tini lamawo purtim ni tung thomo cha thomo don dulu no probu tini repa ye tini probu setan dia bola bai probu tini soleo ye maklai pe tong Rani sakarawo probu tini nung khoma ke ye rani kha pheraw ye phaimai nai probu tini nung rani sakarawo samung biri ake probu tini bo somoy yo nung ya phangche rai sa ye hui modei tini pai tho ya probu nung tong sing pe ake probu tini chuna kau saknare ne sakarawo binis lai bai rang marawo nung tong sing pai tini jong nanai raw se probu tini chirung ye tini sanai sakropo probu tini nung nanai rong chirung ye probu tini chung ka menai ake probu tini chung ko namung kaya bani nini kau thai rono probu tini sia rong ye rono sapi menai chini khapang ro nung raja chapai di ake probu tini babrule probu tini lingpa ye probu tini wana chinta be tune ro probu tini roni sakarawo nungbo kau sakna rite tini nung wana cinta unge tung mobile probu tini wah unthai ma bai kuya tini nung ro purthim len narwai ye chungdi arang mi probu tini chung ro purthim narwai sungara wo probu tini chung kusirung ko tung merai nung se chini no khung ro wo chini takung ko anau phayung ro ni no probu tini nung tung si pai nung no sis na pyo ake bozo to sang sang mo promo idera mo tung ke nung khoma ye Chamai gote motong ke chungso to ni saka asibat pro therapy ni ye jono te konai probu sapano no wai supang sayo amen praise the lord आज का वचन लेंगे लूक चैप्टर 22 लूक चैप्टर 22 verse 31 and 32 Luke 22 31 32 please come kok makaham lúc soi mo song thol phe noi tang thol phe cha kore khalai na ison ne kothek thar kore khalai na lúc soi mom song thol phe noi tang thol phe cha man cha tang thol phe chin Simon nade Soitan le nung no gom buk budei khese sikho ye tuinang ni ngai tong ha himbani ni khathei mo proi thangnai khathei mo proi thangmai ya ungmodei akhe nung Perau phi aini pal rono phain rimai mode angno nini
ke waisok ma sainsa ha isor kothek tar pore mojo ton saka isor asirbat ko Praise the Lord. आज हम जो विषय पर बात करेंगे वो विषय का नाम है शांत और जागृत मन। A mind be peaceful and awaken। तो उसके बाद हम थोड़ी बात करेंगे और उसके लिए सबसे पहला जो हम वचन पढ़ेंगे वो है ईसाया या आइसाया चैप्टर 26 एंड वर्स 3। वो क्या बोलता है? तू दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रख, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। तू दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रख, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। ये सब किसको बोल रहा है? प्रभु आज हमको बताता है, हमको बोलता है कि अपना जो मन है, अपना हृदय है, उसमें शांति बनाए रख। Isaiah 26 वर्स 3 वो हम पढ़ रहे हैं। तू शांति बनाए रख। हमको पता है कि हमारे जीवन में क्या क्या होता है। ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं हमारे रोज का जीवन में जहां पे हमारी शांति वो शैतान छीन लेता है। आप देखो, हमारा जो कार्य है, हमारा जो नौकरी है, हमारा धंधा है, हमारे फैमिली में है, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे बहुत सारी ऐसी चीजों में, काम पे जहाँ पे काम करते हैं उधर भी सब जगह पे कुछ न कुछ ऐसी बातें होती है जहाँ पे हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। और इसलिए क्या होता है, आज प्रभु हमको बताता है कि और हमको कमांड करता है कि तू दृढ़तापूर्वक शांति बनाए रख। अपने जीवन में जो अशांति है उसके पर ज्यादा ध्यान मत रख। क्यों? क्योंकि इस राष्ट्र को तुम पर भरोसा है। इस राष्ट्र को तुम पर भरोसा का मतलब क्या है? जो मैंने कलीसिया तुमको दी है, जो लोग मैंने तुमको दिया है, जिसके लिए मैंने तुमको रिस्पॉन्सिबल बनाया है। सिंपल एग्जांपल है, हमारा प्रेसिडेंट है, हमारे दूसरे जो कमेटी के मेंबर्स हैं, जिनके पास वचन है, जो प्रभु से डर से चलते हैं, जो अपना जीवन अच्छा बनाए रखते हैं, वो सबको प्रभु आज कमांड करता है। क्या बोलता है कि इस राष्ट्र को तुम पर भरोसा है। मतलब कि जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, ये सब तुम्हारे पर भरोसा रखते हैं। और ये भरोसा किससे दिया? ये जो आप पे आज भरोसा भी है, वो प्रभु ने हमको भरोसा दिया। बहुत सारे हमारे दो लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनका जीवन इस तरह से चल रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है कि जीवन में कैसे शांति पाए, प्रभु का आनंद कैसे पाए, प्रभु का प्यार कैसे पाए। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? दुनिया में लोगों के पास से, अलग अलग वस्तुओं से, शॉपिंग से, कपड़े से, खाने पीने से वो अपना प्यार ढूंढते हैं। और उनको पता है कि ऐसी चीजों में कोई प्यार नहीं मिलता। दुनिया के लोगों में, दुनिया की वस्तु में वो प्यार जो है वो टेम्पररी है, थोड़े टाइम के लिए। आज आपको बोलेगा कि ये मुझे बहुत प्यार करता है, मगर दूसरे दिन आपको छोड़ के चला जाएगा। आज आपके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तु है, कल जाके वो पुरानी हो जाएगी, फट जाएगी, हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? दुनिया की चीजें हैं, दुनिया के लोगों हैं, जो हमारी दुनिया में जो हमारी जो स्थिति है उस पर हम ज्यादा भरोसा रखते हैं। और ये थोड़े टाइम के लिए होता है और फिर बाद में हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, हम अशांत हो जाए, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम लोग कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उसके बाद उनको लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई रस नहीं है, आज मुझे अभी इतना अच्छा जीवन जीना नहीं चाहिए। हिब्रू में एक अच्छा शब्द है शालोम। शालोम का मतलब है शांति। आज प्रभु हमको बोल रहा है कि आपकी जितनी जैसी भी कठिन परिस्थिति है, शायद कई लोग बीमार भी होंगे, शायद कई लोग दवाई भी लेते होंगे, प्रभु बोल रहा है कि देखो, आपको मैंने
मेरे पुत्र के बलिदान से, जो क्रूस पर उन्होंने बलिदान लिया है, उनसे आपको मैंने चंगा कर दिया है। 1 पीटर 2:24 आप पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से बताता है। चलो वो भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1 पीटर 2:24, आइए हम इस पर थोड़ा मनन चिंतन करते हैं। मैं आपके लिए ये बताता हूँ। देखो क्या बोलता है, वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के ठाट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो चुके हैं। उनके घावों के द्वारा हमारे अंदर जो बीमारी है सब निकल गई है। उनके घावों के द्वारा आपके फैमिली में जो पैसा का तकलीफ है, आपकी कोई भी बीमार है, आपके जीवन में कोई भी तकलीफ है, सब कुछ प्रभु यीशु के घावों के द्वारा, उनके क्रूस पर मर जाने से हमको चंगाई मिल गई है। We are healed by the blood and stripes of Jesus Christ. This is what the word of God is saying. प्रभु का वचन आज हमको ये इतनी अच्छी बात हमको सिखाता है। इसलिए क्या बोल रहा है, जो 2 पीटर 1 chapter 1 verse 16 to 18, देखो वो क्या बोल रहा है। आइए उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। संत पेत्रुस 2 पीटर chapter 1 verse 16 to 18, जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया, तो हमने कपट कल्पित कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा, जब उन्हें पिता परमेश्वर से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई, और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे, तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी। ये क्या बताता है, संत पीतर और उनके साथ बहुत सारे शिष्य थे, उनके साथ और भी लोग थे। इन लोगों ने प्रभु यीशु जब वो स्नान संस्कार ले रहे थे, प्रभु यीशु जब स्वर्ग में जा रहे थे, इस टाइम पे पिता परमेश्वर की आवाज सुनी। वो बताता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा खुदा है और वो जीवंत परमेश्वर है। हम ऐसे वैसे परमेश्वर को नहीं मानते, हम वो कोई मूर्ति वाले परमेश्वर को नहीं मानते, वो जो फोटो में जो परमेश्वर है उसे नहीं मानते। हमारे जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर, सच्चा खुदा है। इसीलिए हमको सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमको फेलोशिप में आना चाहिए। हमको एक्स्ट्रा सोना है या थक गए हैं या बीमार है, सब कुछ बाजू पर रखना चाहिए, क्योंकि हम जो परमेश्वर मानते हैं वो सच्चा परमेश्वर है मेरे प्रियो। और जितना जल्दी हम समझ लेंगे इतना अच्छा है। आज हम जिस बोलते हैं कि यूथ में है, हमारी उम्र, हमको लगता है कि अभी तो टाइम है, हम तो बूढ़े हो जाएंगे उसके बाद हम परमेश्वर के पास जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, जो लोग ऐसा सोचते हैं, हमको नहीं पता है कि हमारा जो जीवन है कितने साल का है। हमको नहीं पता है आज हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, शाम तक क्या होगा हमारे साथ, हमको नहीं पता है। आज प्रभु हमको एक बात कर रहे हैं कि सब लोग जिसके जीवन में कुछ तकलीफ है, जिसके जीवन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम से चल रहे हैं, सब लोग मेरे पास आओ, मैं आपको सहारा दूंगा। प्रभु का ये वचन है। और सहारा का मतलब क्या है कि आपकी जो भी तकलीफ है सब कुछ मैं ले लूंगा, सब कुछ मैं ले लूंगा, और आपको मैं शांति दूंगा, आपको मैं सच्चा आनंद दूंगा, आपको मैं वैभव दूंगा। वैभव का मतलब है प्रॉस्पेरिटी। आपके जीवन में आपको लगता है कि पैसा शायद कम है, हम क्या करेंगे, कैसे हमारा जीवन व्यवहार चलाएंगे, हमारे माँ बाप को भी हमको हेल्प करना है, हम कैसे करेंगे। देखो, आप जब प्रभु के पास जाते हो, प्रभु के चरणों में आप झुक जाते हो और बोलते हो, प्रभु मैंने अब तक जितने भी मेरे से गलती हो गया, मेरे से पाप हो गए,
मैं आपसे दूर हो गया, आज मैं आपके पास आता हूँ, आपके नजदीक आता हूँ और आपका सहारा मुझे चाहिए। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी ऐसी वस्तु है जो आपको सुकून नहीं दे सकता है। नथिंग कैन गिव यू कंफर्ट इन योर लाइफ। हु कैन गिव यू कंफर्ट? ओनली आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। और आज ये वचन हमको बताता है कि हमारा मन हमको शांत रहना है और हमको जागृत रहना है। We have to be at ease, be at peace, and we have to be aware, we have to be alert कि हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे आजू बाजू जो हो रहा है, हमारे आजू बाजू जो लोग भी है, कौन ऐसे लोग हैं जो हम मुझे परमेश्वर से दूर कर रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे दिमाग में है जो मुझे परमेश्वर से दूर कर रही है? मेरा मन कौन सी दिशा में जा रहा है जो मुझे परमेश्वर से दूर कर रहा है? जो आपके जीवन में ऐसा लग रहा है आपको कि ये सब चीजें जो परमेश्वर से दूर कर रही है, तो मैं आपको बात करूंगा कि आज से आप जागरूक हो जाइए, सबान हो जाइए। बी अलर्ट माय डियर फ्रेंड्स। और प्रभु के पास आप आ जाइए, क्योंकि प्रभु ही हमारा भरोसा है। वो ही हमको शांति और आनंद दे सकता है, वही हमको सच्चा प्यार दे सकता है। और ये प्यार, ये दुनिया का प्यार नहीं है मेरे प्रियो, ये दुनिया का प्यार नहीं है। दुनिया का प्यार टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है। जिस पर आप आज भरोसा रख रहे हो शायद कल वो नहीं रहेगी। बट प्रभु बोल रहा है कि जो प्रभु पे आप भरोसा रख रहे हो वो सदा के लिए आपके साथ है। ये दुनिया में जब तक आप जिंदा है तब तक आपके साथ है, और दुनिया के बाद आप स्वर्ग में भी जाएंगे तो तभी भी परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आज प्रभु हमको इतना अच्छा वचन दे रहा है। आइए हम लोग सेंट जॉन, संत यूहान का चैप्टर 17 वर्स 20 to 21 पढ़ते हैं। जॉन 17 20 21। मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूं बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। जो लोग, मेरे प्रियो, मैं आपसे बोल रहा हूं, प्रभु आपको आज बोल रहा है कि जो आप प्रभु पर विश्वास करेंगे तो प्रभु आपके लिए क्या करेगा। ये जो वचन है वो बोलता है ना कि आपको प्रॉमिस देता है। एक चीज हमको करना है हमारी तरफ से कि प्रभु पे विश्वास करना है। प्रभु पे जब विश्वास करते हो प्रभु आपके लिए क्या करेंगे? प्रभु ये बोलता है, मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूं बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करता है। उनकी शिक्षा क्या? परमेश्वर की शिक्षा। परमेश्वर का जो टीचिंग है, क्या टीचिंग क्या है? मेनली दो टीचिंग है। मेनली हमारे पास तो 10 आज्ञा तो है, बट प्रभु यीशु ने हमको वो 10 आज्ञा को सिर्फ 2 आज्ञा में क्या संक्षिप्त किया है, समराइज किया है। क्या किया है कि आप अपने परमेश्वर को अपनी जात से, पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से प्यार करो। अपने परमेश्वर को पूरे सामर्थ्य से प्यार करो। मतलब ये जो उसको बोलते हैं वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल, उससे प्यार करो परमेश्वर से। और दूसरा वचन क्या है? दूसरी आज्ञा क्या है? जैसे आप अपने को प्यार करते हो वैसे ही आप दूसरे को भी प्यार करो। दूसरों को भी प्यार करो। तो यहाँ पे जो 2 आज्ञा है उसमें क्या बनता है? एक सीधा है और एक आड़ा है। यहाँ पे आप देखते हो ये सीधा है, क्या है कि हमको परमेश्वर से अपने पूरे शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से, पूरे बल से प्यार करना है। और हमारे जो मानव लोग हैं, हमारे फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स है, दूसरे जो लोग हैं, सबको प्यार करना है। यहाँ पे एक शब्द कॉमन जो है वो है प्यार। हमको सिर्फ प्यार करना है, परमेश्वर से प्यार करना है। आप जितना आप अपने आप को प्यार करते हो वैसा ही दूसरों को भी प्यार करो। और वचन इतना तक भी बोलता है कि ऐसा नहीं कि जो अच्छे लोग हैं उससे प्यार करो, जो आपके दुश्मन भी है उससे भी प्यार करो। तो ठीक है, आसान नहीं है। जिन्होंने आपका बुरा किया है, जिन्होंने आपका गलत किया है, तो क्या उनसे प्यार करेंगे? मगर प्रभु यीशु आज हमको ये सिखा रहे हैं कि अपने दुश्मन को भी प्यार करो। आप अपने फैमिली को, अपने मित्र को प्यार करते हैं और वो भी आपको प्यार करता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो दुनिया करती है।
आप जैसे कि साथ तैसे आप व्यवहार करते हैं, उसमें तो क्या बड़ी बात है, वो दुनिया करती है। बट आप दुनिया से अलग हो, दुनिया के जैसे नहीं हो। आप जिसमें मानते हो वो सच्चा परमेश्वर है, और जब वो परमेश्वर में मानते हो तो वो परमेश्वर की आज्ञा क्या है? अपने दुश्मन को भी प्यार करो। मतलब कि हम दुनिया के तौर तरीके से हम जी नहीं सकते हैं। हमारा हृदय, हमारा मन परमेश्वर की जैसा होना चाहिए। हम दूसरों को भी प्यार करें, कैसा भी वो है, कैसा भी उसने हमारे साथ व्यवहार किया, उससे कैसा भी बोल दिया, मेरा अपमान भी किया, हमारे पीठ पीछे भी बोल रहे हैं कि मेरा गलत भी किया, मगर प्रभु बोल रहा है कि उनको भी प्यार करो। आसान किसके लिए हो सकता है? बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्रदर मैं तो किसी को माफ नहीं कर सकता। इसकी तो बात ही छोड़ दो, इसकी तो बात ही छोड़ दो। मेरे प्रियो, मैं आज बोलना चाहूंगा कि कौन से लोग दुश्मन को भी प्यार कर सकते हैं? जो लोगों को परमेश्वर ने अपने प्रेम से भर दिया है, जिनका दिल परमेश्वर ने अपने प्रेम से भर दिया है, तो जब उनके दिल में से जो निकलता है वो सिर्फ प्यार निकलता है। फिर वो देखते नहीं है कि वो मेरा मित्र है, मेरा फैमिली वाला है या मेरा कोई दुश्मन है। वो सबको एक समान तरीके से प्यार करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको आपके दिल में प्यार भर दिया है, प्रभु ने आपको आशीर्वादित किया है, प्रभु ने आपको अभिषेक किया है। लॉर्ड हैज ब्लेस्ड यू विद ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द ब्लेसिंग, एक दो ब्लेसिंग की नहीं, भरपूरी से आपको भर दिया है, भरपूरी से। ना भरपूरी में आप क्या सोचते हो? देखो, आपको पैसा चाहिए, आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए, आपको अच्छा हेल्थ चाहिए, आपकी फैमिली में सबका शांति और सुकून चाहिए, फैमिली में आनंद चाहिए, अपने धंधे में आपको बरकत चाहिए, यू वांट योर बिजनेस टू बी प्रॉस्परस। मतलब ये तो थोड़ी चीज है, उससे भी ज्यादा भरपूरी से प्रभु ने हमको भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज ये बात पर हमको भरोसा रखना है, ये बात पर हमको भरोसा रखना है। प्रभु इसलिए बोल रहे हैं कि आओ मेरे पास आओ, तब मैं आपको भरपूरी से भर दूंगा, आपको पूरी प्रॉस्पेरिटी से भर दूंगा। आई विल फिल यू विद ऑल द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अर्थ एंड हेवन। प्रेज़ द लॉर्ड। एंड ये प्रभु का वचन है, प्रभु का प्रॉमिस है हमारे लिए। मगर एक बात जो यहाँ पे बताया है, वो क्या कहता है कि आप प्रभु पर विश्वास करो। कैसा विश्वास? पूरा पूरा विश्वास, आधा अधूरा नहीं, नॉट 50-50। हम बार बार बहुत जगह पे आपको वो एक कुकीज मिलती है ना, 50-50 वाला कुकीज, उसमें सॉल्ट भी होता है, उसमें शुगर भी होता है, कि वो 50-50 वाला नहीं। वैसा प्यार हमको नहीं करना है प्रभु से, ऐसा भरोसा हमको करना नहीं। जब करना है तो 100%, किसी मेरा कुछ भी हो जाए, मेरा कुछ भी हो जाए, मगर मैं परमेश्वर से सच्चा प्यार करूंगा। और यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है? सबके सब एक हो जाए, पिता जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, इसी तरह वे भी हम में एक हो जाए। देखो, ये प्रभु यीशु किससे प्रार्थना कर रहा है? अपने पिता परमेश्वर से। क्या बोल रहा है? कि प्रभु यीशु बोल रहा है कि पिता, मैं जैसे आपके साथ हूँ, आपके साथ जुड़ा हूँ, वैसा ही मेरे जो लोग हैं दुनिया में, मेरे जो लोग हैं वो भी आप और मेरे में जुड़ जाए। मतलब प्रभु यीशु के साथ और पिता परमेश्वर के साथ हम भी जुड़ जाए, ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी प्रार्थना करें। उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार का यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। संसार प्रभु यीशु को अभी भी बहुत लोग नहीं मानते हैं। मेरे अपने पास एक लेवल तो है कि हम क्रिस्ती है, मगर वचन क्या है नहीं पता है। प्रभु यीशु ने क्या शिक्षा दिया है नहीं पता है। प्रभु क्या हमसे चाहता है नहीं पता है। क्रिस्ती तो है, क्रिश्चियन है, मगर वचन क्या बोल रहा है, प्रभु हमसे क्या अपेक्षा रख रहा है, वो शायद बहुत लोग हमारे पास, हमारे लोगों को नहीं पता है। इसलिए अंदर से उनकी आत्मा तो बोलता है कि वो प्रभु के पास जाए, मगर मन और शरीर वो करने के लिए मना कर रहा है। वो
क्यों होता है? क्योंकि ये सब हमारे जो भाई बहन है, उन्होंने शैतान ने उन लोगों को पकड़ा है, उनके मन को उन्होंने कंट्रोल में किया है, उनके शरीर को उनको कंट्रोल में किया है, उनके दिमाग में ऐसी ऐसी चीज भर गई है, और इसलिए वो लोग प्रभु में आने के लिए तर्क और बोलते हैं ना लॉजिक यूज करते हैं। उनकी वजह से मुझे नहीं जाना है, वो चीज है इसलिए नहीं जाना है। कई लोगों ने मुझे बुला दे, प्रभु ब्रदर हम तो पापी हैं, तो हम कलीसिया में कैसे आ सकते हैं, हम फेलोशिप में कैसे आ सकते हैं? मैंने बोला प्रभु यीशु सिर्फ पापियों के लिए आया है, अच्छे लोगों के लिए नहीं। जो लोग हेल्दी है उनको डॉक्टर की जरूरत है क्या? नहीं। कौन है, किसको जरूरत पड़ती है? जो बीमार है। हम लोग भी आत्मा से बीमार हैं और इसलिए हमको प्रभु की जरूरत है। मेरे प्रियो, आप अभी से जाग जाइए, बी अलर्ट, बिकॉज वो शैतान आपको गिराने की कोशिश करता है। जब आप गिर जाएंगे तो फिर बाद में वो आप अपने पांव से वो दबाता रहेगा, आप उठ नहीं पाएंगे। और ये कई लोग उठ नहीं पाए का मतलब क्या है मालूम है? उनके दिमाग में वो शैतान सुसाइड मतलब मरने का ख्याल कर देता है। और हमारे पास ऐसी भी घटनाएं हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन लोगों ने सुसाइड कर लिया। क्या लगता है उनको कि अभी मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता है। उम्र क्या है उनकी? 19 ईयर्स, 22 ईयर्स, 24 ईयर्स। ये क्या उम्र है? क्या प्रभु ने हमको, बाइबल बोलता है कितना उम्र दिया मालूम है? 120 साल दिया, 120। आदम ने तो 999 ईयर्स, 1000 में एक दिन, एक साल कम था, उतना जिया था आदम, बाइबल बोलता है। पर उसके बाद जब नोहा का जो हमने बोला था कि बड़ी बोट में था, फिर बाद में बहुत सारी बारिश हुई, सब जगह पे फ्लड आ गया था। उसके बाद जो हमको जो जीने का जो साल मिला है, बाइबल बोलता है 120। आपके गांव में या कोई है क्या जो 120 साल जिया है? क्यों ऐसा होता है? हम लोग पाप में डूबे हैं, हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, कोसते हैं कि मैं तो बुरा हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं प्रभु के पास जा नहीं सकता है, प्रभु मुझे प्यार नहीं करेगा। ऐसी गलत चीजें हमारे दिल में घुस जाती है और वो शैतान वही चीज का फायदा उठाता है हमारे जीवन से। हमारे मन में ऐसी गलत चीज डाल देते हैं और हम वही चीजों में रहते हैं, और क्या होता है? हम कलीसिया में नहीं आते, फेलोशिप में नहीं आते, बाइबल नहीं पढ़ते, वचन नहीं पढ़ते। हम हर रोज जो ऑडियो भेजते हैं, कोई लोग सिर्फ देखते हैं फिर बातें निकाल देते हैं। क्यों होता है ऐसा? कई लोग पढ़ते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखा है, और कई लोगों को पसंद भी आता है। वो लोग कभी बार थम्स अप भेजते हैं या कोई हार्ट भेजते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उनके जीवन में प्रभु बहुत बड़ा काम करता है। उनके जीवन में प्रभु शांति देता है, उनका दिल प्यार से भर जाता है। बट हमारा जो प्रश्न है कि जो हमारे दूसरे लोग जिनको पता ही नहीं कि बाइबल का वचन क्या है, प्रभु का प्यार क्या है, प्रभु की सच्ची शांति क्या है, आनंद क्या है, वो जो नहीं पता है, वो लोग कैसा जीवन जी रहे हैं हमको पता है। वो दुनिया के तौर तरीके से जीते हैं। सुबह में जाते हैं काम करने के लिए, रात को आते हैं, खाना खाते हैं, फिर बाद में मोबाइल में रहते हैं, फिर बाद में सो जाते हैं। वैसा ही हर रोज का जीवन एक चक्कर चलता रहता है। दैट इज द लाइफ दे आर लिविंग। बट मेरे प्रियो, वो हमारा एक तरीके का जीवन है, पर दूसरे तरीके का जो हमारा जीवन है वो है ये बाइबल का जीवन, प्रभु का जीवन। हमारे इतने बिजी शेड्यूल में से भी थोड़ा टाइम निकाले, हम आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा हम निकाले। बाइबल नहीं है तो हम लोग हर रोज ऑडियो भेजते हैं व्हाट्सएप पर हमारे ग्रुप में, कम से कम वो तो सुन सकते हैं। उसमें वचन भी है, वचन के द्वारा समझूती भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। उसके द्वारा हम क्या करते हैं? हम हर रोज आपको प्रभु का भोजन देते हैं। वो थोड़ा भी आप आधा घंटा भी आप निकालेंगे। देखो, ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा टाइम। मैं एक आपको प्रॉमिस दे सकता हूँ कि आज से आप शुरू करें कि हर रोज मैं कम से कम आधा घंटा, ये जो ऑडियो मुझे मिलता है, और हफ्ते में एक बार जो फेलोशिप होता है उसमें मैं जाऊँ।
24 घंटे में से 23.5 घंटे 23 आवर्स एंड 30 मिनट्स में शायद काम में या बिजी रहूंगा, बट जो 30 मिनट है मेरे पास, इतना मैं प्रभु के लिए बिताऊंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको वचन देता हूं, जो आप आधा घंटा आप प्रभु के साथ बिताएंगे, मैं बोलूंगा कि आपके जो 23 घंटे और 30 मिनट है उसमें प्रभु काम करना लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरे 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 आपके बाकी का जो जीवन है उसमें प्रभु काम करने लग जाएंगे। आपको क्या चाहिए? आप सोचो, जीवन में आपको क्या चाहिए? अभी आपने जो सोचा है ना, वो प्रभु आपके जीवन में अभी से काम करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये ऑडियो सुन रहे हैं, और देखेंगे एक दिन आपके जीवन में जो आपको चाहिए वो सब कुछ जब मिलेगा, तो आप यहाँ पे एक बार आके हमारे सामने आप टेस्टिमनी देंगे, अपना साक्षी देंगे कि देखो, एक बार पास्टर जी ने हमको बोला था किस तरह से लाइफ जीना है, और हमने शुरुआत किया, थोड़े से शुरुआत किया, आज मेरे जीवन में कितना अच्छा हो गया। ये आप एक बार यहाँ पे आके साक्षी देंगे। और जब हमारे बहुत अच्छी बड़ी कलीसिया चलती थी, जहाँ पे 40 लोग भी आते थे, और उस टाइम पे बहुत लोग आगे आके अपना साक्षी दिया है, अपना टेस्टिमनी दिया है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एक बार आइए, अपना साक्षी दीजिए। मगर ये साक्षी कब दे सकते मेरे प्रियो? जब आप प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे। बाकी तो सब कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा, उसकी बड़ी बात नहीं है। बट सबसे पहला सुबह में उठ के पहला मुंह से क्या निकले? थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, और उसका थोड़ा प्रेयर करें, प्रभु को आज का दिन उनके हाथ में दे दें, और फिर बाद में आप अपना काम शुरू करें। और दूसरा, रात को जब आप सोने जाते हो तो सोने से पहले थोड़ा टाइम प्रभु के साथ बिताएं। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, आपने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया, आज का दिन बहुत अच्छा गया। एक दो चीज शायद अच्छी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बाकी तो बहुत अच्छा हुआ। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। जब हम इस तरह से हमारा जीवन शुरुआत करेंगे तो देखेंगे कि प्रभु आपके जीवन में इतना बड़ा बड़ा कार्य करेगा, प्रभु आपको इतना आशीर्वाद से भर देगा कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। प्रभु चाहता है एक ही चीज, हथरीमो, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, और विश्वास के साथ आप प्रभु यीशु को आपके जीवन में काम करने दीजिए, और उससे आपका उद्धार हो जाएगा, और आपको प्रभु की शांति, प्रेम और आनंद मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।